So hey everybody, do watch this recording. This is my fifth recording related to capacitor and the related formulas. Now in the last video I explained the effect of dielectric inside the capacitor. Okay, when you fill capacitor with the dielectric, its capacitance will change. So there are two cases basically. Let me show you both of them. So this is one of them when the capacitor is fully filled with the dielectric inside of dielectric constant k. In that case its capacitance will increase k times. Okay, so original capacitance k times, so its capacitance will increase k times. Now this is original capacitance when it is air filled, I mean there is no dielectric inside. Well, and the second case is this one, when capacitor is partially filled with the dielectric. So generally thickness will be given. Okay, the remaining part is d minus t, and we know that within the dielectric electric field will get decreased 1 by k times. Even the potential difference will get decreased by 1 by k times. So these both the factors, I mean 1 by k, d minus t, will be there in the formula. Check this one, d minus t, t by k. Okay, so I have explained this formula in the previous videos. In case if you have not seen the last video, kindly do watch it to get more information. So basically this formula we have to use to solve that numerical. Okay, so here this question is from class 12 physics textbook, and basically we have to use the okay, so let me read this question. There is a capacitor and it is partially filled with the dielectric, and its thickness is also mentioned. The thickness is 3 by 4d. Okay, and you know what, I'll show you one shortcut trick. Okay, using that shortcut trick you can solve these type of numericals easily. Okay, so let's go for the shortcut trick as well, and then I'll solve this numerical with the help of formula as well. So basically, let's try to understand what is the trick here. Acha, now here the correct answer is D wala. Okay, D. The fourth option is correct here. Let me write the correct option here on the top. Epsilon naught A divided by D. This is the original capacitance when it is filled with the air. I mean there is no dielectric inside. Now here the 4k k plus 3. K is dielectric constant of the of the material inside. Acha, now thickness is given 3 by 4d. So if you analyze this final equation, I mean this final formula, you will notice that in the thickness 3 is given, that 3 they have utilized in the denominator, k plus 3, and 4 is coming in the numerator and it is getting multiplied with the k. So this is the trick actually. Okay, wait a second, let me solve it here. Okay, hold on. The thickness is 3 by 4d. Okay, so check this one. My capacitance will be original capacitance time. Check this one. Chalo. Acha, 4 multiply with k in the numerator, और ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, it will get added with k. This is the final answer. This is my trick. वेल जो भी ट्रिक्स होते हैं ना बेसिकली वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं. अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है I'll explain later. Okay, now check this one. Suppose that my capacitor is filled with the dielectric and its thickness is 1 by 2d, means half filled है. Okay, half filled है. So in that case देखो मेरा कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा. ओरिजिनल कैपेसिटेंस, अच्छा देखो ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो न्यूमिनेटर में जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन्स 2k, और ये जो न्यूमिनेटर में जो नंबर है वो के साथ ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर में. दैट्स इट, ये मेरा ट्रिक है.
देखो मैंने बिना सॉल्व किए दोनों इक्वेशन आई मीन फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया। ओके, अभी मैं इसको सॉल्व भी करूँगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ओके, using formula I'll solve this numerical and I will get the same answer, but this is the trick. Okay, let me repeat it once again. Check this one, huh? Check this one, everybody. Thickness is given 3 by 4d. Okay, and my final capacitance will be original capacitance. ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, it will get multiply with the k in the numerator, and ये जो 3 है, it will get added with k in the numerator. That's it. Now check this one, huh? अगर मेरा थिकनेस अब डाइलेक्ट्रिक है 1/2 डी मीन्स कैपेसिटर जो है ना वो हाफ फील्ड है। 1/2 का मीनिंग क्या हो गया? इट इज़ हाफ फील्ड। सो इन दैट केस माई कैपेसिटेंस विल बी, देखो ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में जाएगा, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे कितना न्यूमरेटर में 1 है तो वो के साथ ऐड हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ माई फाइनल आंसर। नाउ ये तो शॉर्टकट ट्रिक हो गया। अब इस ट्रिक को थोड़ा वेरीफाई करते हैं। ओके, वी विल यूज आवर ओरिजिनल फार्मूला एंड यूजिंग दैट फार्मूला एज वेल वी विल गेट द सेम आंसर। ठीक है ना? तो फार्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला? बेसिकली ये वाला, जो कि पार्शियली फील्ड कैपेसिटर के लिए यूज होता है। पार्शियली फील्ड मीन्स कैपेसिटर इज पार्शियली फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ रेगुलर थिकनेस। ठीक है ना? थिकनेस विल बी गिवन, वी नीड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना जो ट्रिक है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इन केस इफ़ यू आर नॉट सीन, काइंडली डू वॉच इट। ओके, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द फार्मूला एज वेल। चलो मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। चलो, थिकनेस कितना दिया है? 3/4d। तो मैं फॉर्मूले में इसको वैल्यू पुट अप कर लेता हूँ। ठीक है ना? मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इसको पॉज करके टी 3/4 के डी, तो बेसिकली ये जो टी आ रहा है ना जहाँ पे भी, वहाँ पे मैंने थिकनेस का वैल्यू पुट अप कर दिया है। चलो, अब इफ़ यू नोटिस हियर, ये जो डिनोमिनेटर में डी कॉमन है तो मैं उसको बाहर ले लेता हूँ। ठीक है ना? हम ट्रिक भी यूज़ करेंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए फार्मूला भी यूज़ करेंगे। चलो ठीक है, एप्सिलॉन ए, अगर मैं डी को बाहर ले लेता हूँ तो क्या बचेगा अंदर? 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4 के। ओके, ऑल राइट, नाउ चेक दिस वन। ये जो इनिशियल पार्ट है इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 4 - 1/3/4, सो 1/4 आ जाएगा उसको। ठीक है ना? मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 1/4 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मैं 1/4 लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज देर इज़ लिमिटेड स्पेस ओवर देयर। चलो ठीक है, नाउ इफ़ आई वांट टू ऐड दीज टू नंबर्स, दैट डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। सो मैं ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नाउ आई कैन ऐड दीज टू नंबर्स। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो क्या बनेगा। ऐड करता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? 4k+3, है ना? तो ये 4k सीधा ऊपर चले जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है? अच्छा, then my final answer will be epsilon not a. In the denominator I'll get d k plus 3 and 4k will go in the numerator, right? 4k। तो ठीक है, ये एप्सिलॉन ए बाई डी क्या है? एप्सिलॉन ए बाई डी ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। ठीक है ना? तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ। देखो, ये पार्ट में इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये एप्सिलॉन ए बाय जो डी पार्ट है, ये 4k को और k+3 को मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। ठीक है ना? तो ये तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, इसको मैं
सी नॉट भी लिख सकता हूँ, तो सी नॉट लिख देता हूँ, चलो वहाँ पे सी नॉट मीन्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो यही तो हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक एज वेल, ठीक है ना। तो मैं ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। चलो वापस चलते, देखो यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करते। थिकनेस दिया है 3/4D, सी इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस, और ये जो 4 है ये न्यूमरेटर में के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में के साथ ऐड होगा। दैट्स इट, ये था मेरा शॉर्टकट ट्रिक, है ना। सो बेसिकली ईच एंड एवरी ट्रिक इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आगे बताऊंगा। वेल, बिफोर दैट लेट्स सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल। देखो, दिस वन इज फ्रॉम द फिंगर टिप्स। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, there is nothing inside, has a capacitance C when it is half filled। half filled का मीनिंग क्या हो गया? ओके, हाफ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। सो जो थिकनेस है, जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है वो 1/2 सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर। हाफ फिल्ड हो गया ना, तो इसका क्या मीनिंग हो गया? लेट मी ड्रॉ द रफ डायग्राम हियर। सो इट इज हाफ फिल्ड, सो 1/2 पार्ट क्या हो गया? उन्होंने डाइलेक्ट्रिक से उसको कवर कर दिया। So there is dielectric between the plates and the thickness of the dielectric is 1/2 of the separation between the plates। So यहाँ पे thickness कितना आ गया? 1/2। अच्छा, मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करूँगा। देखो, इसको कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है उन्होंने? कैपेसिटर है एंड इट इज़ हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मीनिंग क्या हो गया? D/2 ही आएगा ना थिकनेस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ उसको। ओके, so check this one everybody, I'm going to use the trick now। half filled है 1/2D, so my capacitance will be original capacitance। देखो क्या होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो वो ऊपर जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमिनेटर में 1 है तो वो के साथ ऐड हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म, सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ओके, मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ट्रिक यूज़ किया और इसको सॉल्व कर दिया। चलो ठीक है, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स सॉल्व इट नाउ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन, दैट इज 5, मींस वैल्यू ऑफ k is also given 5, and we need to calculate percentage increase in the capacitance। Okay, so let's put the value in the formula and let's calculate the percentage increase। तो यहाँ पे k का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, C0 C। k का वैल्यू कितना दिया है? 5 ना, सो 2 × 5, ये न्यूमरेटर में 10 हो जाएगा एंड 5 + 1 6 हो जाएगा, राइट। मैंने डायरेक्टली लिखा है, oops wait a second, let me write it properly। so value of k is 5, 2 × 5 10 and k + 1 6। चलो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक मैंने इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया। अच्छा देखो क्या आएगा अभी, 60, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 आएगा, राइट। अच्छा, चेक दिस वन नाउ, लेट मी ब्रिंग C0 on this side, 5/3। चलो हमें परसेंटेज एरर निकालना है, सॉरी परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। बेसिकली इट्स लाइक दिस, C/C मल्टीप्लाई बाय 100। चलो ठीक है, बेसिकली ये ऐसे होता है। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा आंसर? ओके, इसका आंसर आएगा 1.66। ओके, 1.66। चलो ठीक है। तो बेसिकली एरर निकालना रहता है ना, तो इसमें -1 करते हैं, ठीक है ना। उप्स सॉरी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सो 1.66 -1 करेंगे तो 0.66 आएगा, और बेसिकली उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा जो एरर आएगा, इंक्रीज आएगा, परसेंटेज इंक्रीज, इट विल बी 66%। तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया? ओप्स सॉरी, आंसर, सो विच आंसर इज करेक्ट? बी वाला 66%। एक्चुअली 66.66 रिकर होगा,
ओके 66%। सो बेसिकली करना क्या था, सबसे पहले तो हमें कैपेसिटेंस कितना चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करना था, राइट। सो वो कितना आएगा, थिकनेस कितना दिया 1/2t, सो 2k प्लस k/1। तो मैंने ट्रिक यूज़ करके डायरेक्टली फाइंड आउट किया, और देन आई कैलकुलेटेड द परसेंटेज डिफरेंट, आई मीन increase in percentage increase in the capacitance. So with the help of trick you can easily solve this numerical. So let me repeat once again. If the thickness is given, I can directly use the values. 4 है डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाके k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 है, सो वो k के साथ ऐड हो जाएगा। दिस इज माय फाइनल कैपेसिटेंस। अच्छा, विद फॉर दिस थिकनेस C नॉट ओरिजिनल कैपेसिटेंस, डिनोमिनेटर में 2 है तो वो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 वो k के साथ ऐड हो जाएगा, राइट। सो यू नो व्हाट, आई कैन क्विकली गेट द फाइनल सॉल्यूशन, I mean final capacitance. But wait a second, it doesn't work for all the thickness. It works for some particular thickness only. I mean, wait a second, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये जो न्यूमरेटर में जो नंबर है, इट इज़ लेस देन वन लेस देन नंबर इन द डिनोमिनेटर, वन दैट इज़ वन लेस देन नंबर इन द डिनोमिनेटर। तो ये इस टाइप के थिकनेस के लिए ही काम करता है बेसिकली। मीन्स for this one 4/5d, again, and you'll get the same answer, 7/8d, again you will get the same answer. Let me show you, wait a second, there is always a limitation actually. This is getting too much now. see देखो अभी यहाँ पे कितना आएगा, 5 है, सो 5k ऊपर आ जाएगा, 4 सो k प्लस 4 नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट फॉर दिस एज वेल। फाइंड आउट करते हैं तो ये जो 8 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस विल वर्क फॉर द नंबर्स विच आर इन दिस वे, मीन्स न्यूमरेटर में जो नंबर है इट इज़ वन लेस देन नंबर इन द डिनोमिनेटर, फॉर दोज नंबर्स ओनली दिस ट्रिक विल वर्क, ओके। एंड इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, there is always a concept behind each and every trick, so that I'll explain in the next video. Thank you very much.